ओके चलो। Good morning, students. Now, in this lecture, we have to discuss units of measurement and their conversion. Units of measurement of angle. Units for the measurement of angle. Units for the measurement of angle. And then we have to discuss their conversion. Done? So here, basically there are two units are there. First unit which is used to measure the angle is degree measurement. Degree measurement of angle, and the second unit which is used, which is radian measurement. Done. These two units are used for the measurement of angle. So let's now consider degree measurement. What is degree measurement? So here, if we draw one circle, and if we divide this circle into 360 equal parts. Done. If we divide the circle into 360 equal parts, suppose this is one 316 part of the circle. So 1 degree है ना, डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, 1 डिग्री इज नथिंग बट द 1 और इसके ऊपर छोटा सा जीरो करेंगे, 1 डिग्री. सो 1 डिग्री इज नथिंग बट द 1 by 360 है ना, 1 by 316 part of complete revolution. वन कंप्लीट रिवोल्यूशन मीन्स 360 डिग्री है ना. वन कंप्लीट रिवोल्यूशन यहाँ से लेके पूरा एक सर्कल लगाओ तो कितना होगा 360 डिग्री. सो दैट कंप्लीट रिवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 पार्ट. सो वट एवर द वन पार्ट दैट वी गेट इज नोन एज 1 डिग्री. डन. 1 डिग्री इज नथिंग बट द 1 by 360 ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन. डन. ये तो हो गई डिग्री की बात. उसके बाद further, if you divide 1 degree into 60 equal parts, so that is nothing but the 1 degree equal to 60 minutes. और मिनट्स के लिए ऐसे डैश लगाएंगे, 1 minute equal to 60 degree. और further we divide 1 minute into several parts, so that 1 minute is nothing but the 60 seconds. है ना, डबल डैश लगाएंगे. So 1 minute is nothing but the 60 seconds. 1 degree is nothing but the 60 minutes. Done. So it's a degree measurement. Then another measurement for the measurement of angle is radian measurement. So for radian measurement, we have to consider one unit circle. In which radius of circle is 1 unit. What is the unit circle? Circle with 1 unit radius is known as unit circle. So here radius of this circle, that is r, is 1 unit. So here r is 1 unit. Radius of circle is 1 unit. And then we have to consider one arc of the circle. Consider this is the arc of the circle. And the length of this arc is also 1 unit. So here we have to consider one circle with unit radius, and then we have to consider one arc of the circle whose length is also 1 unit. Arc is also of length 1 unit. Done. So here if we consider angle subtended by this arc of the 1 unit at the center, angle subtended by this arc at the center, that is nothing but the theta radian. ना थीटा के ऊपर ऐसे छोटा सा c करना है, या फिर थीटा लिख के आप छोटा सा इस पाई लिख सकते हो. तो दैट इज radian measurement. Theta is nothing but the L by R. So what is the theta? It's an angle subtended by one arc of unit length of a unit circle at the center is known as 1 radian. है ना? So 1 radian is nothing but the angle subtended by one arc of unit length. Angle subtended by arc of unit length at the center of unit circle.
So what is the unit circle? Unit circle is the circle with radius 1 unit. ऐसा एक सर्कल कंसीडर करना है, उसकी सेंटर पर आपको एक एंगल कंसीडर करना है. कौन सा एंगल? दैट एंगल सबटेंडेड बाय वन आर्क. कैसी आर्क? जिसकी लेंथ भी 1 यूनिट हो. तो जो एंगल यहाँ पर फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन. क्लियर स्टूडेंट्स? So definition of radian is theta is equal to L by R, where L is length of arc and R is radius of circle. Done? Now we have to describe the relationship between this degree measurement and radian measurement. So here, what is degree measurement? Degree measurement says that one complete revolution of the circle, है ना? One complete revolution is nothing but the 360 degree. Degree measurement says that one complete revolution will give us 360 degree, है ना? 360 डिग्री, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हमें 360 डिग्री देगा. और यहाँ पर रेडियन मेजरमेंट में कंसीडर करो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब ये जो आर्क है, दैट आर्क ऑफ लेंथ 2 पाई आर रेडियस होगा, है ना? 2 पाई आर. सो अकॉर्डिंग टू दिस formula, theta radian will be length of arc for this complete revolution. Complete revolution means circumference of circle, that is 2 pi r, and r is the radius of 1 unit upon r is again radius of 1 unit. So theta radian for one complete revolution will be 2 pi radian. Done? So complete revolution, one complete revolution कहाँ पर लिखे? यहीं पर लिखते हैं. चलो, one complete revolution in radian measurement, one complete revolution in radian measurement will give us 2 pi radian. So here in degree measurement, one complete revolution will give us 360 degree, and one complete revolution in radian measurement will give us 2 pi radian. So we can compare both this one. That means 360 degree is nothing but the 2 pi radian. Hence we can say 180 degree is equal to pi radian. बस ये रिलेशन आपको याद रखना है. By using this relation, we can convert any degree measurement into radian or any radian measurement into degree. Clear friends? So now we'll try to solve some questions based on these conversions. First question, here we have to convert degree measures into radian. Convert degree measurements into रेडियन. डन? डिग्री मतलब ये छोटा सा सर्कल होगा और रेडियन मतलब सी होगा या फिर पाई होगा. डन? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 75 डिग्री. कन्वर्ट दिस 75 डिग्री इनटू रेडियन. कन्वर्ट दिस 75 डिग्री इनटू रेडियन. तो हमने क्या रिलेशन डिराइव किया डिग्री और रेडियन के बीच में? 180 डिग्री, है ना? 180 डिग्री is nothing but the pi radian. 180 degree is pi radian. So can we say 1 degree, है ना? 180 डिग्री pi radian होगा, तो 1 डिग्री कितना होगा? It's a pi upon 180 radian. Yes, है ना? डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड 180 से. तो यहाँ पर 1 डिग्री हो गया, that is equal to pi upon 180 radian. अगर हमारा 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन है, कितना डिग्री हमारे पास? 75. तो दोनों साइड 75 मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया हमारा 75 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 180 इंटू 75 रेडियन. डन? तो 75 डिग्री कितना होगा? पाई अपॉन 180 इंटू 75. तो ये हमारा रेडियन मेजरमेंट मिलेगा. सिंप्लीफाई करो इसको. सो दिस इज इक्वल टू, है ना, 5 से कटिंग होगा. 15 5 जा 15 1 जा 15 3 15 2 जा. So it's a 5 pi upon 12 radian. So 75 degree is nothing but the 5 pi by 12 radian. Done? ऐसे कन्वर्जन करना है. और आप सिंपली शॉर्टकट याद रखना चाहे तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री को पाई अपॉन 180 से, है ना, डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिंपली. डन? चलो एक और सम करते हैं. सम नंबर 2. हियर वी हैव टू कन्वर्ट 135 डिग्री
इंटू रेडियन। देखो फिर से पूरा सम करते कैसे करना है। 135 डिग्री इज गिवन, दैट डिग्री एंगल वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। डिग्री एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो पहले रिलेशन लिखेंगे ना पूरा, उसके बाद शॉर्टकट में कैसे करना है वो दिखा दो। सो हियर वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, है ना, ये हमने डिराइव किया हुआ है कि 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। सो 1 डिग्री कितना होगा, तो 1 डिग्री के लिए 180 को 180 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो हियर वी हैव टू डिवाइड दिस पाई बाय 180। सो 1 डिग्री इज नथिंग बट दी पाई अपॉन 180 रेडियन, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, जो भी डिग्री है उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस वन 135 डिग्री इट इज इक्वल टू, है ना, 1 डिग्री को 135 से मल्टीप्लाई किया। सो हियर 135 इंटू पाई इंटू 180 रेडियन। सो 135 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 135 को मल्टीप्लाई करो पाई अपॉन 180 से, so we'll get the answer in radian measurement. So here simplification, कटिंग होगा, बिल्कुल होगा। 5 से करते हैं, 5 3 जा 15, 3 बचा, 5 6 जा 30, here 5 1 जा 5 2 जा 10, 3 5 7 जा 35, again 9 से 9 4 जा 9 3 जा, so it's a 3 pi by 4, है ना, 3 pi by 4 रेडियन। तो हमारा आंसर आ गया कि 135 डिग्री कितना होता है, 3 पाई बाय 4 रेडियन। डन स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है सबको। चलो एक और करते हैं। सपोज नेगेटिव आ गया, नेगेटिव। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो -22 डिग्री 30 मिनट्स। चलो -22 डिग्री 30 मिनट्स, तो पहले माइनस वाला करना हो तो सपोज इसको कर लेते हैं, है ना। सपोज ये था हमारा एक और क्वेश्चन कि -135 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो माइनस आएगा तो क्या करेंगे, तो सपोज माइनस आ गया तो कुछ नहीं करना है, माइनस को आपको माइनस ही कंसिडर करना है, और वो जो 135 के साथ हम करते हैं वही करना है। सो 135 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ 135 इंटू पाई इंटू 180 रेडियन। तो जो आंसर आएगा वो हमारा माइनस में आएगा, सेम यही आंसर, -3 पाई बाय 4 रेडियन। क्लियर। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन कंसिडर करनी है, और सिंपली जो हमारा कैलकुलेशन है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखो माइनस साइन है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, बाकी सब कुछ सेम ही करना है। बट हियर और एंगल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड मिनट। हमने डिस्कस किया था, है ना, कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स and 1 minute equal to 60 seconds. So here this angle is given in terms of degree and minute. So first, to convert this degree into radian, we require our angle in terms of degree only. तो क्या करना है आपको, ये जो मिनट है तो मिनट को भी आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी सम्स आएंगे जिसके अंदर मिनट भी होगा एंड सेकंड भी होगी, तो आपको सेकंड एंड मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पूरा एंगल डिग्री में लाना है, उसके बाद वो डिग्री एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। इज दैट क्लियर? सो हियर दिस इज आवर 30 मिनट्स। तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 22 मिनट प्लस 22 डिग्री प्लस 30 मिनट। 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 30/60 करेंगे तो ये हो जाएगा मिनट, बिकॉज वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, तो मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो हियर वी डिवाइड दिस 30 मिनट्स बाय 60, सो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू -22 डिग्री प्लस 0 कट एंड 3 2 जा 6, इट्स अ 1/2 डिग्री। 22 प्लस हाफ, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 22 2 जा 44 प्लस 1 45 प्लस 2 डिग्री, है ना। तो पहले जो एंगल दिया हुआ था, द गिवन एंगल इज इन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड मिनट, so that is now converted into degree only. So now we can convert this degree measurement into radian. कैसे करना है, so this is 45/2 degree, that is equal to minus of 45/2 into डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से। तो दिस इज इक्वल टू
रेडियन मेजरमेंट। सो आवर आंसर इज माइनस, यहाँ पर सिंप्लीफाई करो 45 5 जा 45 4 जा, so it's a minus of pi by 8 radian, minus of pi by 8 radian, that is the radian conversion है ना, radian equivalent angle of this 22 degree and 30 minutes। clear students, जिसको आप पहले अच्छी तरह से नोट डाउन करो। we have to convert degrees into radian, so question number 4, here we are given degree, that is minus 300 degree, we have to convert this minus 300 degree into रेडियन मेजरमेंट। सिंपल, कैसे करना है, अगर माइनस साइन आ गई तो माइनस को ऐसे रखना है बाहर, 300 डिग्री को है ना, 300 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना होगा, जो 300 है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई इंटू 180 से, पाई अपॉन 180 से, तो ये रेडियन हो जाएगा। सिंप्लीफाई हो सकता है तो करो, 0 0 कट, 6 3 जा 6 5 जा, है ना, ये माइनस साइन थी तो ये माइनस 5 पाई बाई 3 रेडियन। सो माइनस 300 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 5 पाई बाई 3 रेडियन, माइनस 300 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 5 पाई बाई 3 रेडियन। डन, ये कन्वर्जन आपका हो चुका है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, अभी सबको क्लियर हो रहा है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन ना, फोर्थ के बाद फिफ्थ, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स है ना। क्वेश्चन नंबर 3 किया, सेम ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट आई हैव सेड, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस डिग्री एंड मिनट इनटू डिग्री ओनली। पहले आपका एंगल बिल्कुल डिग्री में होना चाहिए, उसके बाद आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो हियर फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस मिनट इनटू डिग्री। तो कैसे करेंगे, सो 40 डिग्री प्लस 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 60, सो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू डिग्री। ये जो मिनट था वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया, डिवाइडिंग दिस 20 बाय 60, सो 0 0 कट, 2 3 जा 6, सो दिस वन इज 40 डिग्री प्लस 1 by 3 डिग्री। डन, सो 40 प्लस 1 by 3 कितना होगा, 3 4 जा 12 प्लस 1 121 by 3 डिग्री, ये आपका डिग्री हो गया। Done. Now we have to convert this degree measurement into radian. So for that we have to multiply this degree with pi by 180. Pi by 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा रेडियन। डन, ये डिग्री मेजरमेंट था, अगर इसको हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा रेडियन। उसके बाद जो भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है उसको करो, होगा कुछ 3 से नहीं होगा। तो आंसर इज 121 पाई अपॉन 18 3 जा 54 एंड 0 radian। Done. So given angle is 40 degree 20 minute, that is equal to 121 pi upon 540 radian। Done. चलो इसको नोट डाउन करो। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। Now question number 6. Here we have to convert this degree measurement, that is 48 degree 37 minute and 30 seconds। Convert this degree measurement into radian। तो यहाँ पर आप देखो सेकंड्स भी दिया हुआ है, मिनट भी दिया हुआ है और डिग्री भी है, तो पूरा एंगल पहले तो हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो टू कन्वर्ट दिस एंगल इनटू डिग्री, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेकंड इनटू मिनट, देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिनट इनटू डिग्री। डन, तो पहले सेकंड की बात करते हैं। सो 30 सेकंड्स इज इक्वल टू 30 बाई 60 मिनट्स है ना। सेकंड को 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट हो जाएगा, तो कितनी मिनट होगी, 1/2 मिनट, 1/2 मिनट हो गई। नाउ अभी हमारे पास कितनी मिनट हुई, 37 मिनट एंड 1/2 मिनट, सो टोटल इज 37 प्लस 1/2 मिनट्स आर देयर। सो दिस इज इक्वल टू 37 2 जा 74 प्लस 1 75/2 minutes are there, 75/2 minutes are there। अभी ये 75/2 मिनट्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मिनट को मिनट्स को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 75/2 मिनट्स दैट इज इक्वल टू 75/2 मिनट्स डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ये हो गया डिग्री। तो कितना होगा देखो, 15 4 जा
15 फाइव जा, सो ये हो गया हमारा 5/8 डिग्री, 5/8 डिग्री, है ना। ये पूरा कन्वर्जन हो गया, मिनट एंड जो सेकंड था उसका कन्वर्जन कर दिया 5/8 मिनट में। अभी कितना मिनट हुआ हमारे पास, सो टोटल मिनट इज 48 मिनट, 48 मिनट प्लस 5/8 मिनट, सो टोटल मिला के कितनी मिनट होगी, कितनी डिग्री होगी, 48, सॉरी मिनट बोला मैंने, 48 डिग्री प्लस 5/8 डिग्री हुआ। सो टोटल डिग्री इज, एडिशन करो, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38 प्लस 5 whole divided by 8, this one is degree, this much amount of degree. So 384 plus 5, it's a 389/8 डिग्री। डन। तो पहले तो हमने सिर्फ डिग्री, मिनट एंड सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट किया, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस डिग्री इनटू रेडियन। सो नाउ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबको पता है क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करना होता है। तो दिस इज इक्वल टू 389/8 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। डन। तो ये रेडियन हो गया, तो कुछ हो सकता है क्या, कुछ नहीं होगा। तो इट्स 389 पाई अपॉन इसका मल्टीप्लीकेशन, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 प्लस 6 4 और ये 0। डन। दिस इज रेडियन। किसका आंसर आया, इसका आंसर आया, है ना, ये डिग्री का आंसर आया। सो 48 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड इज इक्वल टू this much amount of radian. Clear students? So this is how we can convert degree measures into radian. So now we'll convert our radian measurement. Second type of question in which we have to convert radian into degree. Done. So we know that pi radian is equal to 180 डिग्री। तो देखो कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छे वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 6 डिग्री इनटू रेडियन। पहले हमने किया था डिग्री को रेडियन में, अभी रेडियन को डिग्री में करना है। सो 6 रेडियन को इसमें कन्वर्ट करना है। सो हियर वी नो दैट, यहां से स्टार्ट करें कि पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री। सो 1 रेडियन कितना होगा, सो 180 बाई पाई, 180 बाई पाई डिग्री होगा। और ये 1 रेडियन इतना होता है, तो 6 रेडियन कितना होता है, तो दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट्स 180 अपॉन पाई इंटू 6 डिग्री। डन। अभी ये पाई डिग्री में आ गया, तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे। सो 6 डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन पाई, पाई इज 22/7, 7 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 भी ऊपर था, तो ये आ गया डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाइड क्या होगा सिंप्लीफिकेशन, 11 2 जा 11 3 जा। डन। तो अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करो, क्या होगा, 7180 इंटू 7 3 जा 21/2, 2 से क्या ना 2 11 जा था, 2 11 जा डिवाइड बाई 11 डिग्री। डन। अभी ऊपर फिर से मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 प्लस 1 3780 डिवाइड बाई 11। ये आ गया हमारा डिग्री। और बोलेंगे सर ये हमारा डिग्री में आंसर, नहीं 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 नहीं, फ्रैक्शन में डिग्री नहीं लाना। डिग्री आ गई तो डिग्री हमारा होगा इंटीजर्स में, डिग्री मिनट एंड सेकंड के फॉर्म में। तो अभी आपको डिवाइड करना है 3780 को, 3780 को 11 से। सो 11 3 जा 33, 4 और ये 8 नीचे आया, 11 4 जा 44, 4 ये 0, 11 3 जा 33 और ये बचा 7। तो इसको हम लिखेंगे, है ना, इसको क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 343 डिग्री प्लस 7/11 फ्रैक्शन में मिनट, है ना, फ्रैक्शन में डिग्री आ गई। सो दिस इज इक्वल टू 343 डिग्री प्लस ये जो फ्रैक्शन में है डिग्री, उसको हम डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 60 करके मिनट में कन्वर्ट करेंगे। सो इतनी मिनट होगी। तो दिस इज इक्वल टू 343 डिग्री प्लस इसका क्या होगा
7 6 42 बाई 11 मिनट। तो अगेन फिर से मिनट फ्रैक्शन में आ गई, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, तो 420 को डिवाइड करेंगे 11 से। सो 11 3 जा 33, सब्ट्रैक्शन करो, सो 9 एंड 0, 11 8 जा 88 और ये 8 आ गया। तो इसका कन्वर्जन क्या हो गया, इट्स 343 डिग्री प्लस, है ना, 38 मिनट्स, 38 मिनट्स प्लस फ्रैक्शन में मिनट कितनी आई, 8/11 मिनट्स, ये फ्रैक्शन में आई। तो फिर से ये जो फ्रैक्शन में मिनट है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 8/11, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड्स हो जाएगी। तो कितना हुआ, इट्स 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस कितनी सेकंड, 8 6 48, 48/11 सेकंड। तो अगेन 480 को डिवाइड करेंगे, 480 को डिवाइड करेंगे 11 से। सो 11 4 जा 44, 40, 11 3 जा 33, है ना। तो कितना आंसर आया, 48 समथिंग सेकंड आया। तो दिस इज इक्वल टू 343 मिनट प्लस 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 48 सेकंड्स अप्रोक्सीमेट, है ना, अप्रोक्सीमेट। दिस इज आवर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। 38, है ना, ये मिस्टेक हुई। सो दिस वन इज 2/11, 2/11। सो दिस वन इज 6 2 जा 120/11, 120/11 को करो, है ना। सो 120/11, 120/11, सो 11 1 जा 11, 1 0, सो 11 11 जा 121। तो अप्रोक्सीमेट 10 सेकंड्स यहाँ पर कर दो, अप्रोक्सीमेट 10 सेकंड्स, डन। तो ये आपका आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये समझ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो हियर वी हैव टू कन्वर्ट दिस रेडियन, रेडियन इज π/64, π/64 रेडियन इनटू डिग्री। वी हैव टू कन्वर्ट दिस रेडियन इनटू डिग्री। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो π/64 रेडियन, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा अभी कि 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डिग्री में। सो हियर π कट 60 और 180/64 डिग्री आ गया, है ना। लेकिन डिग्री हमारी फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 होगा, 90 होगा, 16 होगा, 45 होगा। तो सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन में हमारी डिग्री आ गई 45/16। तो डिग्री हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, उसको हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर्स में। तो 45/16 करो, तो 16 2 जा 32, यहाँ पर बचेगा 3 and 1 13, डन। सो 45/16 इज नथिंग बट द 2 इंटीजर, so it's a 2 डिग्री प्लस फ्रैक्शन में कितना आएगा, 13/16 डिग्री, 13/16 डिग्री, डन। नाउ ये फ्रैक्शन वाली डिग्री को अभी मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो इट्स 2 डिग्री प्लस ये जो फ्रैक्शन वाली डिग्री है उसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 60, तो भी ये हो गया मिनट। सो 13 into 60, so it's 2 डिग्री प्लस कितना होगा, 65 78 780/16 मिनट, डन। अच्छा, इसको करो डिवीजन, 780 को 16 से करो, 16 4 जा 64, यहाँ पर 4 1 और ये 0, डन। अभी आगे क्या होगा, 16 8 जा कितना होता है, 16 8 जा 128, सो यहाँ पर 12 बचेगा, सो इट्स 48 मिनट्स, है ना। ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 2 डिग्री प्लस, है ना, इसको कन्वर्ट किया तो आएगा 48 मिनट,
48 मिनट प्लस फ्रैक्शन में कितनी मिनट आई 12/16, तो 12/16 को कैसे लिखेंगे 4 3 जा 4 4 जा, सो इट्स अ 3/4 मिनट। डन। अब ये 3/4 मिनट को फिर से सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा 2 डिग्री प्लस 48 मिनट प्लस 3/4 फ्रैक्शन वाली मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 60। तो दिस वन इज 2 डिग्री प्लस 48 मिनट प्लस 15 4 जा 60, 15 3 जा 45 seconds। Done। So this one pi/64 रेडियन is nothing but the 2 डिग्री है ना, इसको प्लस नहीं लिखेंगे बीच में, 2 डिग्री 48 मिनट 45 seconds। Done। So this is a degree measurement which is equivalent to pi/64 radian। Clear students?